Hello everyone, very good afternoon. Are you able to see me? Wrong camera, 1 second. Okay, so everybody is unmuted. Are you able to hear me? I can see Vasu, I can see Lohit, Yes. Usha, Yes, sir. Virendra. So, starting 5 minutes late because people have joined very late. Mahesh, Susham. So very good afternoon. So I'll tell you the plan. Today we're going to do many different types of problems in probability, and tomorrow we are going to do total probability, total prop theorem, and the base theorem tomorrow. By tomorrow we'll complete the probability. Next week is all for calculus. Next whole month April is for calculus, differential and integration. Okay, that's the simple plan. Today, tomorrow probability, and next week onwards or next month onwards we'll starting the calculus. Now, before I start, couple of questions with each of you. Let's see who want to answer. Yes, very good afternoon. Tell me who will tell first. Vasu, what do you mean by mutually exclusive event? Give me with example. Anybody? Mutually exclusive event. Usha, Lohit, anyone want to answer this? What do you mean by mutually exclusive event? And give me one example. Quickly, please. Mahesh, Virendra, Susham, Uh, anyone? Yes, Usha. Sir, mutually exclusive means I think both are not related to each other. So both can happen, parallelly. Like any event can happen at the same time. That is ulta of that. So Okay. mutually exclusive event, mutually exclusive Usha. मतलब कि if occurring of one event avoids the occurring of another event. Oh, जैसे exclusive, mutually exclusive, दोनों एकदम exclusive है mutual. मतलब दोनों एक साथ नहीं हो सकते in हिंदी. Both cannot happen together at a time. For example, when you toss a coin, तो head आएगा या tail आएगा, right? ah. You cannot get both. You cannot get both head and tail, right? Oh, I told opposite, just reverse. Right. That's fine. For example, a dice, getting a even number and getting a odd number are mutually exclusive. But if I say getting a prime number and a odd number, they are not mutually exclusive. दोनों साथ में आ सकते हैं, right, Usha? Yes, sir. Getting a prime number and a odd number, 3 आ गया, तो prime भी हो गया, odd भी हो गया. So they are not mutually exclusive. Good. So next, who will explain me independent events? कौन बताएगा Sir, independent events? which is not dependent on another event. Example. Uh, uh, कोई भी सर अगर example. कार्ड्स का अगर एक कार्ड लेके फिर वहां पे फिर से रख के फिर से लेना है सर. तो एग्जांपल ये हुआ, यू आर राइट, जैसे कि कोई हमने डेक लिया, कार्ड्स का डेक, और उसमें सपोज आई एम पिकिंग 2 कार्ड्स. ध्यान से, कल मैंने बताया था लास्ट बार, वी आर पिकिंग 2 कार्ड्स वन आफ्टर अदर विथ Yes, sir. रिप्लेसमेंट. Replacement. पहले कार्ड निकाला, देखा, वहां पर रख दिया. देन आई पिक द सेकंड कार्ड. अब सेकंड कार्ड में क्या आना, इट विल नॉट डिपेंड ऑन व्हाट वाज रिसीव्ड इन द फर्स्ट कार्ड, राइट? Totally independent, because outcome of what is happening in second card is not dependent on what we got in the first card. ये हुआ independent. लेकिन if I don't do replacement, I say without replacement, कि मैंने कार्ड निकाला और मेरे पास वापस नहीं रखा मैंने, I have not put it back. Now they are dependent event, because suppose I am getting a probability getting a red card. अगर पहला कार्ड रेड आ गया तो probability सेकंड का डिफरेंट होगा. अगर पहला कार्ड ब्लैक आया तो probability डिफरेंट होगा. So the probability depends on what was occurred in the first pick. Okay, ये हम लोगों ने कर लिया already. Now let's talk today more different type of questions. First we'll talk about questions on, say, various problems and probability. I'll give a very good example. Let's say I have bag A. अब ध्यान रखो, bag A has 4 red balls.
3 green balls, 5 blue balls. Okay, let me write everything in a line. Bag A. Now I have another bag B. In this, red is 2, green is 4, and blue is 3. Some random example I have to put. Now see the problem. That is what we're going to do today. Many examples like this. Question is, if one ball is picked from bag A and transferred to bag B, then one ball is selected from bag 2. What is the probability that ball picked from bag 2 would be red? Now, how will you do this question? It's a very interesting. You try, everybody. What is the probability that ball picked from bag 2 would be red? That is the question. Everybody solve it. I'll explain you stepwise how this will work and how the concept works for this. Okay? Everybody should try first. Very interesting. It's the actual question of probability. This is higher level. I'm going to write in blue. Shall I solve this question? Next you will solve, so that it will be clear how we are doing. See, first it says one ball is picked from bag A and transferred to bag B. Finally, what we need? We need probability of getting a ball should be red. So our whole focus is red balls. Now, when you transfer a ball from bag 1 to bag 2 or bag A to bag B, either it can transfer the red ball or either it can transfer green or blue, right? We don't know. So, we have to always assume the scenarios. Scenario 1, red ball is transferred. Scenario 2, green ball is transferred. Green or blue. I am combining scenario 2 and 3. Green or blue ball is transferred. So there are 2 or 3 scenarios depending upon you are combining or not. I combine scenario 2 and 3. 2 is scenario green, 3 is scenario blue. But I combine together because object is red or not red. So now see what happens. Tell me, everybody, forget the whole question. Bag A has this many balls, bag B has this many balls. I am transferring one ball from bag A to bag B. What is the probability that red ball is transferred? What is the probability that red ball is transferred from A to B? 4 by 12, 1 by 3. 4 by 12. Because red balls are 4. Yes, sir. And total balls are 12. So picking a red ball from bag is 4 by 12. So now Yes, red sir. ball is transferred from bag A to bag B. So now bag B has how many total balls? Initially it was 2 plus 4 plus 3. 9 balls. 9. Now 10. Now balls become 10. Yes, sir. Now how many red balls are in bag B? पहले 2 balls थी. अब red transfer हो गई. So there are 3 balls, right? हाँ, 3 red. देखो everybody. I transfer red ball from here to here. So red will become 3, right? Yes, sir. And total ball will become 10. Now I am picking a ball from bag to B. So what is the probability of getting a red? 3 by 10. So this is the probability of getting red ball transferred and then picking a ball. This is the scenario 1. Why I put the star here into multiply here? Because it's AND.
red ball is transferred and red ball is picked from bag B. अब scenario 2 में लेते हैं. Scenario 2 is green or blue ball is transferred. Forget the scenario 1. Start from again scratch. Bag A has 4 red, 3 green and 5 blue. What is the probability of getting a green or blue ball from bag A? 3 green, 5 blue. Total कितना हुआ? 8. So 8 by 12 is the probability of transferring green or blue ball. Everybody agree? या तो green transfer हो जाए blue. Now, suppose say green or blue is transferred. So in bag B में red will still be 2 only, right? And total ball will be still 10. This is the probability of getting red ball from bag 2 when green or blue is transferred. So final probability is sum of both. Scenario case में क्या होता है? This or this or this or this. So solve कर लेते हैं. कितना हुआ ये? 4 into 3 12. 12 by 120. I am not simplifying now. ये simplify नहीं कर रहे. 16 by 120. Everybody agree? So final probability will be sum of both. Scenario 1 plus scenario 2. So हो गया 12 by 120 plus 16 by 120. So final probability is 16 and 12, 28 by 120. अब वो simplify करते रहो उसको. That is different thing. 4 से करते हैं तो 4 7 28 30. Final answer is 7 by 30 is the probability of getting red ball from bag 2. No, ask me doubts. Whatever doubts you ask. जिस भी step में doubts है, I am going to give you 2 more questions on this. Anybody, any question or crystal clear? Anybody? This is the transferring red ball from A to B. This is picking red ball from B. Or transferring green or blue 8 by 12 and picking red from bag 2. Final probability is sum of these two. As it is, simple. Tell me on chat, anybody, any confusion? Or all good? Are you ready for doing the second question on this? Tell me guys, yes or no? I'm still waiting whether कोई doubt है या clear है. Every one of you on chat, GTG, CC, whatever. Tusham says CC, good. Usha says GTG, good. बाकी लोगों का क्या है? So now what I'm going to do is, I'm going to erase this half of it. See the question I'm changing now. If one ball is picked from bag and transferred to bag C, one ball is selected from bag A. So only change I did is now here. So I'm transferring a ball from A to B and then I'm picking from bag A. Now what is the probability that ball picked will be red? Try everybody. See एक line change किया, एक word. Try now everybody please. And tell me what should be the answer. Any answers? Who will explain me step by step this? पहले क्या करेंगे? Who want to explain? Any one of you? Tell me who want to work with this with me on this? Scenario, yes, Usha, tell me. Scenario 1. Should you want to do scenario 3 scenarios or 2 scenarios? How much you want? 2 2 scenarios.
Yes, two. Because we can combine 2 and 3. Tell me you. Yes. First step. So first we will, if one ball is picked means first we will check if Red is transferred. red is transferred. Second scenario is green or blue is transferred. Either green or blue is transferred. ठीक है चलो. So tell me now. Red is transferred. Yes, sir. So if red is transferred, to What is probability of picking a red ball from A to transfer? so Four from red ball? A 4 by 12. That is for transfer. This is And this. And now it will be, I think. no, you are three- picking again a ball from bag 1 only. A only. हाँ, bag 1 only. So red So कितना if बचा? red, तो 3 by 11. 3 by 11. Because ball कम हो गया. ये आ गया 4 और 3 12. अच्छा 12 से 12 कैंसिल कर देते हैं इस बार. 1 by 11. Correct? Yes, sir. अब आया सिनेरियो 2. सिनेरियो 2 क्या है? Scenario 2, green और blue. ग्रीन और ब्लू. कितना है ग्रीन और ब्लू तो बैग 1 में? bag 1 में 8. 8 by 12. So that is the probability of transferring That it. is not transferring it. And If sir, We are- in we this are, no, we are case, still picking a ball from bag A only. What is the probability now from picking a ball red from A? Because how many balls are remaining in bag A now? One is transferred, right? 4, हाँ, 11. Transfer एक ही हुआ है ना? हाँ, मतलब transfer एक How ही many है, reds sir. are there? Red will be 4. That's it. Yes. So कितना हुआ ये? 8 by 12, 4 by 12, so 4 by 3, 8 by 33. Right? So what is the final probability? Final probability will be sum of both, right, Yusha? Yes, sir. Because So it's 1 an OR million plus scenario. 8 by 33. Yes. That's it. और इसको लिखो 3 by 33. 11 और 20. 11 by. सर ये LCM समझ नहीं आया. हाँ मुझे पता था ये वाला, राइट? हाँ जी. 11 वाला? 33, correct. ऊपर 1 by 11 वाला भी और ये 33 वाला भी. ये वाला? जी. ये तो मैंने कट किया है. 4 into 3 कितना होता है? 12. 12 by 12. ओके. चला गया तो 1 by 11. यहाँ पे भी 4 को कट किया 12 से 3. तो नीचे हो गया 3 into 11 33. ऊपर बच गया 8. ओके. अब मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो इसको 1 by 11 को I can write 3 by 33 also, right? 3 by 33. तो दोनों को ऐड कर दिया 11 by 33, 1 by 3. ठीक है? सर ये 1 by 11 3 by 33 कैसे बन गया? 11 into 1 by 11 3. के 3 by 33 क्या होता है? ओके. सिर्फ सिंपलीफाई कर दिया मैंने इसलिए. तो हमारा हो गया ये प्रोबेबिलिटी इज ओनली 1/3. तो फर्स्ट स्टेप में थोड़ा समझ में नहीं आया. पूछो कहाँ पे? ये वाला 3 by 11 वो कैसे है सर? देखो इसको ऐसे लो. ये प्रोबेबिलिटी किस चीज का है? तो रेड बॉल का ट्रांसफर का. कि यहां से ट्रांसफर हुआ रेड बॉल. जी. तो रेड बॉल कितना है? 4. टोटल कितना है? 12. तो 4 by 12 हो गया रेड बॉल ट्रांसफर का. जी. अब रेड बॉल चला गया तो ये कितना हो गया? 8. 3 हो गया ना. ये रेड बॉल चला गया ना. वो एक रेड बॉल चला गया. करेक्ट. हम ट्रांसफर एक ही कर रहे हैं. देखो 1 बॉल इज पिक. टोटल कितना हो गया? 11. हाँ. टोटल 11. 11 बॉल है, उसमें 3 रेड है. अब इसमें से मैं एक रेड बॉल निकाल रहा हूँ हाँ. तो प्रोबेबिलिटी क्या तब होगा? 3 by 11 होगा. ये 3 by 11. और एंड इसलिए है कि ये एंड का सिचुएशन है. एंड इसलिए मल्टीप्लाई है कि पहले मैं रेड ट्रांसफर किया एंड मैंने रेड बॉल पिक किया. ठीक है? हाँ. जी सर. ये बिल्कुल क्लियर है. यस सर. अब आते हैं सेकंड केस में. ग्रीन या ब्लू ट्रांसफर किया. कोई भी एक ट्रांसफर कर दिया, फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि रेड नहीं है, बस इतना है. तो एक ट्रांसफर हो गया यहाँ पे. जी. अब यहाँ कितना होगा मतलब नहीं है. यहाँ पे तो बॉल फिर से 12 में से एक कम हो गया, 11 हो गया, राइट? हाँ. रेड कितना? रेड तो अभी भी 4 ही है, राइट? क्योंकि ग्रीन Yes, या sir. ब्लू का है. सो जी. पहले मैंने ट्रांसफर किया है, सो 8 by 12 क्योंकि ये 5 और 3 8 है. जी. तो 8 by 12 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग इट. हाँ. एंड
ट्रांसफर के बाद मैं इसमें से पिक कर रहा हूँ। हाँ। तो इसमें टोटल रेड बॉल कितना है? 4। यस सर। बॉल कितना है टोटल? 11। 4। एक तो चला गया, टोटल बॉल 11। 11। मतलब एक फर्स्ट क्वेश्चन और पार्ट करेंगे। ट्रांसफर का, फिर एंड, फिर पिक करने का। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा दिया है। जी एक क्वेश्चन और करते हैं वाला, ठीक है? जी। सो एवरीबॉडी, दिस टाइम आई वांट एवरीवन टू डू इट। एक क्वेश्चन और करते हैं। बैग 1, बैग 1 में है रेड 5, व्हाइट 4 और ब्लैक 3, ठीक है? दूसरा बैग लेते हैं, रेड को 2 ले लेते हैं, व्हाइट को 6 ले लेते हैं, ब्लैक को 4 ले लेते हैं। रैंडमली कुछ भी ले लिया मैंने। अब क्वेश्चन में बोलता हूं 1 ball is transferred from bag 1 to 2 and then 1 ball is selected or picked from bag 2. What is the probability? ये क्वेश्चन आते हैं, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल पिक्ड वुड बी, कौन सा करें? ब्लैक कर लेते, चलो, वुड बी ब्लैक। अब मुझे इसमें तुमसे चाहिए स्टेप्स। आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट, हाउ यू अप्रोच दिस क्वेश्चन। इसको हम लोग 3 सिनेरियो से करेंगे, ठीक है? अगर सो दैट यू एवरीबॉडी नो कि 3 सिनेरियोस क्या है। देखो क्वेश्चन क्या है, पहले बॉल ट्रांसफर हो रहा है और फिर पिक हो रहा है। यू टू कंसीडर बोथ। ट्राई करो, देन आई विल एक्सप्लेन। एवरीबॉडी ट्राई, देन आई विल एक्सप्लेन, ओके? आई गिव यू 30 सेकंड्स फर्स्ट। सर पहला क्वेश्चन का थोड़ा एक डाउट था। ये उसमें इसमें क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल डाउट हो जाएगा। कौन बोल रहा है? लोहित? हाँ सर। लोहित, चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, बाकी लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग साथ में करते हैं। पहले ट्रांसफर करने का सिनेरियोस कितना है? सिनेरियोस फॉर ट्रांसफर। कौन कौन सा बॉल ट्रांसफर हो सकता है? सिनेरियो 1, 3 सिनेरियो लिखेंगे इस बार, ठीक है? लोहित? हाँ सर। सिनेरियो 1 क्या है? रेड ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर। सिनेरियो 2 व्हाइट ट्रांसफर हो गया। जी। सिनेरियो 3 ब्लैक ट्रांसफर। ब्लैक ट्रांसफर हो गया। अब एक काम करते हैं, तीनों जगह पहले ट्रांसफर का प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। रेड ट्रांसफर हुआ तो रेड का ट्रांसफर का प्रोबेबिलिटी क्या है? बैग 1 से 2 में रेड कितना है? बैग 1 में 5। और टोटल बॉल कितना है बैग 1 में? 12 है। तो 5/12 हुआ ट्रांसफर होने का प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ भी लिख लेते हैं सेकंड केस में। व्हाइट ट्रांसफर का क्या प्रोबेबिलिटी है? 4/12। 4/12। 4/12। वो सॉल्व बाद में करेंगे। हाँ हाँ। और ब्लैक ट्रांसफर का 3/12। तो कोई डाउट नहीं इसमें, राइट? नहीं सर। ये तो ट्रांसफर का। अब वापस फर्स्ट पे आते हैं कि सपोज एज्यूम करो कि रेड ट्रांसफर हो गया, तो ट्रांसफर हो गया रेड बैग 1 से बैग 2 में। अब बॉल कहां से पिक करना है हमको? क्वेश्चन पढ़ो। 1 to 2 and then 1 ball is picked from back 2 बैग से। 2 से करना है। तो अब सारा फोकस किस पे रहेगा? बैग 2 पे रहेगा। अब बैग 2 में टोटल बॉल कितना हो गया है? 13 कर रहे हैं, बिकॉज एक ऐड हो गया तो 13 हो गया। अब बैग 2 से कौन सा बॉल निकालना है हमको? वहां पे लिखा है ना हमने क्वेश्चन में, वुड बी ब्लैक। हाँ ब्लैक का। ब्लैक कितना है बैग 1 में? बैग 1 में 3। नहीं बैग 2 में, हम बैग 2 से निकाल रहे हैं, सॉरी, राइट? 2 में 4 है सर। तो और एक 4 ही, एक तो रेड आया तो 4 ही रहेगा ब्लैक। तो हाँ हाँ। तो ये हो गया। देखो टोटल 13 में से 4 ब्लैक, तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए ब्लैक फ्रॉम द बैक 2 इज 4/13। क्लियर है? यस सर। कि नहीं है? है सर। 13 बॉल बैक 2 में था, उसमें से ब्लैक निकाल रहे हैं, तो 4 ब्लैक है। 4 ब्लैक। कर लो कितना हुआ है। इसको मैं सिंपलीफाई नहीं कर रहा हूँ, उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 5 × 4 20 और नीचे 30 × 2 130 26 13 2 26 कितना होता है? 13 30 156 होता है शायद। सॉल्व बाद में करेंगे। तो मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है? 5 × 4 कर दिया 20, 30 × 12 156।
अब लोहित केस 2 का बोलो। अब केस 1 को बिल्कुल भूल जाओ, सिनेरियो 2 को बोलो। वाई हाँ। ट्रांसफर हुआ राइट, जी तो फिर से बैक 2 में कितना बॉल हो गया? 13 हो गया। 13। अब हमको निकालना क्या है? निकालना ब्लैक ही है। ब्लैक निकालना है। ब्लैक कितना है? 4/13। 4/13। तो ये हो गया 4 into 4 16 by 156। अब आते हैं Yes, थर्ड सिनेरियो, जो कि मेन सिनेरियो है। हम्म थर्ड सिनेरियो में भी क्या करना है? बैक 2 से निकालना है, क्योंकि ट्रांसफर तो कर चुके हैं हम लोग। हाँ अब उसमें से ब्लैक निकालना है, तो बॉल टोटल कितना है? 5 ब्लैक होगा और टोटल 13 हाँ, ब्लैक वहां पे बढ़ गया है क्योंकि हमने ब्लैक ट्रांसफर किया है, ब्लैक ट्रांसफर किया। तो 5। 5/13। तो 3 into 5 15 by 156। ये 156। तीनों सिनेरियो का हो गया, दिस और दिस और दिस। यस सर। तो टोटल प्रोबेबिलिटी होगा वो सम ऑफ ऑल द सिनेरियो होगा। ये और है, तो 1/5 प्लस 16 by 156 प्लस 15 by 156। ठीक है ना? यस सर। सिंपल, हमने इसको स्टेप बाय स्टेप लिया है। तो स्क्रीन पे दिख रहा है सबने, कुछ बाहर तो नहीं आ रहा है ना? नहीं नहीं। तो 20 सम कर लो, 156 तो डिनोमिनेटर में हो गया, ऊपर हो गया 20 और 16 36 और 46 51। 51 बाय 156, उसको सॉल्व भी कर सकते हो। 6 5 11, हाँ 3 से हो जाएगा। 17 बाय 3 5 जा 52। 17 बाय 52 इज द प्रोबेबिलिटी। अब कोई डाउट है लोहित? नहीं सर, पहले मतलब उसमें ट्रांसफर का प्रोबेबिलिटी निकालो और फिर ट्रांसफर हाँ, के बाद पिक का प्रोबेबिलिटी निकालो, दैट्स इट। हाँ पूछो, क्या मतलब पूछ रहे हो? उसमें सर वो कैलकुलेशन का थोड़ा समझ में नहीं आया था। मतलब सेकंड सिनेरियो का 4/12 वो सर ये क्या 7 नहीं होगा सेकंड वाले में? वापस बोलो। सर सेकंड सिनेरियो में वाइट अगर एक एक्स्ट्रा आएगी तो हाँ 6 थी तो 7 हो जाएगा ना? देखो, हम क्वेश्चन का फोकस क्या है? ये अच्छा, वुड बी ब्लैक। ये भी ब्लैक का निकाल रहे हैं यहाँ पे, ये भी ब्लैक का निकाल रहे हैं, ये भी ब्लैक का निकाल रहे हैं। क्वेश्चन ये है ट्रांसफर कोई भी हुआ हो, फाइनल में प्रोबेबिलिटी निकाला ब्लैक का। ओके ये 4/13 में मैंने ब्लैक का लिया है, यहाँ भी ब्लैक का लिया है, यहाँ भी ब्लैक का लिया है, ओके और यहाँ पे जो ट्रांसफर किया उसका लिया है, क्योंकि आई एम ट्रांसफरिंग इट, इसलिए। ओके तो देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स गाइस। पहले ट्रांसफर कौन सा हुआ और फिर पिक कौन सा हुआ। ओके इज एवरीवन ओके ऑन दिस? Do you want to do one more problem on this? I'll just change the numbers here. यस सर। But I want everyone to get it correct, okay? This time. Any doubt, anyone? Usha is okay, Tushar is clear. Good. Okay. No, देखो, I'm going to change only one thing. What if the ball picked would be, okay, one ball is picked from bag 1. मतलब समझ लो क्या हो रहा है। पहले 1 से 2 में ट्रांसफर हुआ, अब 1 से पिक कर रहा हूं। That's the question. Try this now. Same question I picked from 1 now. Mahesh, Vasu, Virendra, Usha, getting it all? सर डूइंग इट। Okay, Yes, good. And don't hesitate, ask me, because what is my objective is, एक बार ये क्लियर हो गया ना, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, you can easily do it, because concept should be mind में क्लियर होना चाहिए कि करना क्या है. All these questions, all type of question on this concept.
First find the transfer probability and then find the picking probability from bag 1. I am writing all steps also here. कौन बताएगा मेरे साथ ये? सुशाम, उषा, उषा ने कर दिया, वासु, anybody who want to work with me on this? 5 upon 12. 5 upon 12, okay. मुझे आंसर नहीं पता है, but I'll solve because मैंने solve नहीं किया अभी. Who want to work with me on this? Okay, start करो. पहला सिनेरियो मैंने लिया, रेट ट्रांसफर हुआ है. जी सर. तो रेट ट्रांसफर हुआ है 1 से 2 में. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ट्रांसफरिंग रेट? 5/9 12 5/12. और फिर अब आई एम टेकिंग स्टिल द बॉल फ्रॉम बैग 1 ओनली. 1 में रेड कितना हो गया? रेड एक ट्रांसफर हो गया, राइट? हाँ. 4 रह गया. 4/11. और टोटल total कितना है? 11. 11. एक कम हो गया, तो ये हो गया 20/132 होता होगा. ठीक है. अब आते हैं सिनेरियो 2 पे. वाइट ट्रांसफर हुआ है. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ट्रांसफरिंग वाइट फ्रॉम 1 to 2? 4/12. परफेक्ट है. अब मैं आई एम स्टिल पिकिंग फ्रॉम बैग 1, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सर रेड निकालना है, ब्लैक निकालना है सर? ब्लैक पिक करना है. सॉरी, ब्लैक निकालना है. फिर मैंने गड़बड़ किया है यहाँ पे हाँ. ये आई एम सॉरी, मैं वो रेड का सोचा था. तो ये 3 होगा फिर, राइट? हाँ 3/11 होगा. हाँ, तो कितना हुआ? 15 हो गया. मेरे वो रेड मन में रेड ही था मेरा. ओके, 15. अब फिर से व्हाइट ट्रांसफर हुआ 4/12. हमको निकालना है ब्लैक. ब्लैक का कितना है? 3/11 होगा. फिर कुछ चेंज नहीं है, तो 12/1. 12/132. लास्ट सिनेरियो में व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग इट? ब्लैक 3/12 3/12 टाइम्स. into अब ब्लैक निकाल रहा हूँ फर्स्ट में से. 2/11. ब्लैक ट्रांसफर हो गया तो ब्लैक कम हो गया जी. 6/132. फाइनल प्रोबेबिलिटी क्या होगा? सबका एडिशन. यस सर. 15 प्लस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 15 प्लस 12 प्लस 6, सो दैट की टाइम बचेगा. और बाय 132 33/132. कितना होगा? 15 25 27 33. 33/132. 3 2 5 6, 3 से डिवाइड होगा ऑब्वियसली. 11/3 4 जा 12, 30 12 44. अरे ये तो मजेदार. गुड, होता कई बार. दैट्स गुड. यस सर. So anybody got the same answer like me? 1/4 आया था किसी का? नहीं आया था. कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ. Okay, thank you. Everybody cool now? No, I am going to move to different topic now. Different concept. ये सबका क्लियर है? महेश, उषा, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लो. Now, check other type of it. ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस हैं. See, this kind of question get in exam. I am not going to on theory, guys. कि इवेंट ABC ना. I am going on जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, चाहे वो 12th बोर्ड हो, चाहे तुम्हारा जी हो, चाहे तुम्हारा एनडी हो, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जहाँ पे कि यू गेट प्रोबेबिलिटी. अब करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन. ये बहुत प्रॉपर क्वेश्चन है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज इन ए लीप ईयर? एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, नेक्स्ट पास तुम करोगे. ठीक है. फोकस ऑन द कंसेप्ट, डोंट वरी अबाउट आंसर. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज इन ए लीप ईयर? पहले टेल मी कि लीप ईयर में डेज कितने होते हैं? 366 डेज. ठीक है एवरीबॉडी. वीक में 7 डेज, सो 366 डिवाइड बाय 7 कितना होता है बताओ? 7 5 35, 36 36. So 52 weeks and 2 extra days. ये यहां तक समझ लो, किसको क्लियर है? जो एक लीप ईयर होता है 366 डेज का,
उसमें होते हैं 52 फुल वीक्स। मैंने 360 को 7 से डिवाइड किया और कुछ भी नहीं किया है, और 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं। जब लोग क्लॉक कैलेंडर करते हैं तब भी काम आता है। तो हुआ अब ये 52 फुल वीक, मैं वाले देता हूं फुल वीक्स। 52 फुल वीक्स मतलब क्या हुआ? मतलब 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, 52 वेडनेसडे, 52 थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मतलब सारे डे 52 बार तो कम से कम आना ही है, राइट? इसलिए क्वेश्चन 53 का बनता है, 52 51 का नहीं बनता। 52 तो मंडे होने, 52 ट्यूसडे, 52 वेडनेसडे, ऑल द डेज आर 52 एटलीस्ट। नाउ प्रॉब्लम सारा है दिस 2 एक्स्ट्रा डेज, कि 2 एक्स्ट्रा डेज क्या होंगे? मंडे होंगे, ट्यूसडे होंगे, वेडनेसडे होंगे, थर्सडे, वी डोंट नो। डिपेंड कर रहा है ईयर कब से शुरू हुआ है। ईयर मंडे से शुरू हुआ है, वेडनेसडे शुरू हुआ है, ट्यूसडे से, उस पर डिपेंड करेगा। तो वी कैन डोंट नो। सो उसके लिए बनाएंगे प्रोबेबिलिटी। ये 2 एक्स्ट्रा डे क्या हो सकते हैं? या तो मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, या ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकते हैं, या वेडनेसडे थर्सडे हो सकते हैं, या थर्सडे फ्राइडे हो सकते हैं। यही कॉम्बिनेशन हो सकता है ना? या फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, या सैटरडे संडे हो सकता है, या फिर मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, या फिर संडे मंडे। बताओ इसके अलावा कोई चांस हो, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है? ये 2 दिन एक्स्ट्रा बच गए, यही है। तो कितने आउटकम हो गए जो आ सकते हैं? 1 2 3 8 3 4 5 6 7। कितने आउटकम हुए? टोटल 7 आउटकम्स। या तो मंडे ट्यूसडे हो, या ट्यूसडे वेडनेसडे हो, वेडनेसडे थर्सडे, लाइक दैट, संडे मंडे। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, राइट? देयर आर टोटल आउटकम्स आर 7। और हमको क्या चाहिए? 53 संडेज। 52 तो सब आ ही गए, एक्स्ट्रा संडे। संडे किसमें एक्स्ट्रा आ रहा है? इस कॉम्बिनेशन में या फिर इस कॉम्बिनेशन में। तो फेवरेबल आउटकम कितने होगा मेरे पास? 2। probability of getting 50 Sunday is 2/7. That's it. अब पूछो डाउट। probability of getting 50 Sunday in a leap year is 2/7. It's not like 1/365, 366, nothing like that. क्योंकि 52 तो फिक्स है, उसमें कुछ नहीं करना है हमको। सारा प्रॉब्लम है एक्स्ट्रा डेज, जो 2 एक्स्ट्रा डेज है। प्लीज टेक ए स्नैपशॉट ऑफ दिस एंड देन आस्क मी, या फिर लिख लो। वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। क्लियर है? सर इसको मतलब रिटर्न में कैसे एक्सप्लेन करें उसको कि 2/7 होगा? रिटर्न में ऐसे एक्सप्लेन करोगे, यू विल बोलोगे ये तुम्हारा हो गया सिंपल स्पेस, मैं लिख देता हूँ रेड में। रिटर्न में ऐसे एक्सप्लेन करोगे, मुझे पता है तुम अपने स्कूल के हिसाब से सोच रहे हो जी। ये हुआ सिंपल स्पेस। तुम बोलोगे टोटल आउटकम्स इक्वल टू 7, फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 2। टिक लगा दो जो लगाया मैंने, सैटरडे संडे संडे मंडे। यस सर। यहाँ पे तुम लिखोगे, स्कूल में अगर लिखना है तो ये लिखोगे 52 फुल वीक्स। इट मीन्स 52 Mondays, 52 Tuesdays. Self explanatory. Like that, every day will be 52. यस सर। 52 Sundays. मतलब पूरा लिख रहा हूँ, बट दैट इज इतना लिखोगे तो यू शुड गेट फुल मार्क्स, बिकॉज हमें सारा कंसेप्ट कवर हुआ है, द मेन थिंग कवर हुआ है। इसके पहले वो लिख सकते हो, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो लिखते शुरू में प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट बाय नंबर ऑफ, वो तो लिखोगे तुम। मेन कंसेप्ट इसका यही है, इतना लिखोगे यू शुड गेट एवरीथिंग, करेक्ट आंसर एज वेल एज द फुल। एनी डाउट? Tusham, all good? All 7 days occur 52 times, right, Tusham? Tusham, clear है? Perfect? Good. See. Mahesh? So, now I am going to modify this question 4 or 5 times. इसलिए मैं बार-बार पूछ रहा हूँ, is it clear? So that you can do any question like this. अब same question if I change and it's a regular year, leap year नहीं है, तो बताओ, I don't want answer. I want someone to explain कि अब क्या होगा। ये मैं पहले ही हटा देता हूँ जो फालतू लिखा है।
1 सेकेंड ना 65 डे होगा, 1 डे होगा। चलो इतना काफी है। तो 1/7 होगा शायद सर। ओके 1/7 और कोई आंसर? सर 0 तो नहीं होगा? मुझे नहीं पता वो तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। उषा you'll solve with me? Yes, sir. उषा regular year how many days? So regular 365 days. 365 वीक में 7 दिन हो गए तो 365/7 पूरा वीक तो फिर 52 हो गया। और एक्स्ट्रा डे कितना आया? 1 One One. day. अब ये जो एक्स्ट्रा है या तो मंडे होगा या ट्यूसडे होगा या वेडनेसडे होगा, Single. थर्सडे होगा, Friday. फ्राइडे होगा, क्योंकि 7 दिन में ये प्रोबेबिलिटी है ना कि ये इनमें से क्या हो सकता है अलावा कुछ। दैट्स इट। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 1 So फेवरेबल आउटकम हो गया one. ओनली वन। कौन सा वाला? Only one. ये वाला। तो प्रोबेबिलिटी हो गया दैट्स इट। किसी ने बोला ना 1/7 राइट? इजी है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत इजी है राइट। उषा क्लियर है ना? पक्का है? सर एक पूछो कंफ्यूजन हो रहा है पूछो पूछो। सर उसमें लिखा लाइक अच्छा समझ गई। नहीं सर समझ गई पक्का? यस। Okay. Anybody? I don't want anyone to go home with doubt. 53 संडे है, 52 तो सब 52 तो आना ही है। उसका प्रोबेबिलिटी का कोई पूछे ऐसा भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी 52 संडेज, बोलो 100%, वो हमेशा आएगा राइट। तो उसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है। Now I'll modify this question again if everybody is okay. What is probability having 53 Mondays and 53 Thursdays in a लीप ईयर? बताओ। इसे बता देता हूं मैं, जब तो पता ही है हम लोगों को ना, इसलिए मैं आई एम जस्ट टेल मी एवरीबॉडी हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। टेल मी एवरीबॉडी what is the probability having 53 Sundays and 53 Thursdays in a leap year? 0? No. Mahesh says 0. Mahesh, explain why 0. Because there is only 2 days left after 52 weeks, and Correct. Monday and Thursday are very. They are not consecutive days. Yes. Correct. Everybody, very good, Mahesh. So guys, concept same है, 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, 52 पूरे वीक हो गए। Both the days will be consecutive, right? Sunday, Monday या Monday, Tuesday. Monday, Thursday कैसे आएगा? वो तो हो ही नहीं सकता है। तो no favorable event. Probability is 0, impossible event. Because जो दोनों दिन है वो लगातार होने चाहिए। So Monday and Thursday not possible. Clear everybody? Yes, sir. Probability. Now, if I change this question with just one word change, यहाँ पे मैं और कर देता हूँ। No answer will change or answer will remain same. What is probability having 53 Mondays or 53 Thursdays in a leap year? 4/7. 4/7. Mahesh says. Anybody else? सोचो, concept wise same है। 53 Mondays or 53 Thursdays in a leap year. 1/7 into 1/6. Sir, 1/6 36 42. 40 1/40। हाँ मल्टीप्लाई क्यों किया तूने लोहित? हाँ सर, मल्टीप्लाई क्यों किया? याद नहीं है। हम एक के बाद एक पिक थोड़ी कर रहे हैं। देखो फिर से वही बात है, 52 तो पूरे वीक्स है, 2 दिन एक्स्ट्रा है, तो 2 दिन एक्स्ट्रा कैन बी, मैं वापस से लिख रहा हूं क्योंकि जरूरी है। राइट लोहित? यस तो टोटल आउटकम कितने हुए? 7।
वो तो 7 ही होना है उसमें हर केस में। हाँ लेकिन फेवरेबल चेंज होता है। फेवरेबल चेंज। अब इसमें से फेवरेबल कौन कौन सा है लोहित? पहला वाला Sir, फेवरेबल है मंडे, मंडे, दूसरा थर्सडे फ्राइडे का, वेडनेसडे थर्सडे का, फिर थर्सडे फ्राइडे, फिर संडे मंडे। हाँ 4। हाँ ओ कंसेप्ट एक ही है। 4/7। कौन सा कॉम्बिनेशन चलेगा? ये वाला कॉम्बिनेशन, इन चार में से कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए, इट्स ए फेवरेबल, प्रोबेबिलिटी इज 4/7। 4/7। तो कंसेप्ट सेम लगा रहे हैं हम। टोटल एक्स्ट्रा डेज में क्या क्या कॉम्बिनेशन, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। A7. And the last question on this, what is probability having 53 Mondays or 53 Tuesdays in a leap year? दो क्वेश्चनों करेंगे, बताओ फटाफट। 53 Mondays So or 3/7. 53 Tuesday, sorry 3/7. 3/7. 3/7, क्योंकि इस बार क्या होगा, ये तो 7 ही रहना है। मंडे और ट्यूसडे एक कॉम्बिनेशन ये, एक कॉम्बिनेशन ये और एक कॉम्बिनेशन, तीन ही होने हैं, राइट? इट्स ऑल अबाउट टोटल आउटकम है, फेवरेट आउटकम, और कुछ नहीं है इसमें। इट्स ऑल। तो शाम ऑल गुड? वासु, वीरेंद्र, Yes, कोई sir. डाउट नहीं है, Understood. राइट? सुपर। अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज करूं और लीप ईयर के बजाय रेगुलर ईयर करूं, तब क्या होगा? सर एक माइनस हो जाएगा क्योंकि 2/7 नहीं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। ये तो 7 ही आना है। 2/7. 2/7, तो क्या तो मंडे आ सकता है या ट्यूसडे या वेडनेसडे, तो मंडे और ट्यूसडे दोनों प्रोबेबिलिटी, तो 2/7। और अगर मैं इसको लास्ट क्वेश्चन गाइस, 2/7 क्लियर एवरीबॉडी कि मंडे आ सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, 7 ऑप्शन, मंडे और ट्यूसडे, सो 2। एंड द लास्ट क्वेश्चन, इफ आई चेंज अब बताओ क्या होना है? 1/7. ध्यान रखना उसमें एंड है। 53 मंडेज एंड और का बहुत बहुत लफड़ा है, क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी में, एंड और Zero. का अलग है। Sir, 0. सर रेगुलर ईयर है। इट्स ए रेगुलर ईयर, तो एक ही दिन एक्स्ट्रा होगा, या तो मंडे हो सकता है, ट्यूसडे, दोनों नहीं हो सकते, राइट? 0. 0/7 और 0। Is everyone see crystal clear? Perfect. Let's do another question. A number is picked from first 100 whole numbers. What is the probability that it would be a perfect square? बताओ। A number at random is picked from first 100 whole numbers. सबको पता है whole numbers क्या होता है? What is probability that it would be a perfect square? 1/10. 1/10. Mahesh says. Okay. What are others? पहले निकालते हैं टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कितने, टोटल नंबर्स कितने कंसिडरेशन में है? 100. कैसे 100? 0 to 99 सर। 0 to 99 guys, not 1 to 100, right? So total outcomes are 100. 0 से 99 कोई भी आ सकता है। फेवरेबल आउटकम कौन कौन से हैं? 1 4 1 9 4
9, 25, 36, 49, 64, 81. ये तो 9 हुए ना? 9. फिर अब 0 स्क्वायर में तो 0 होगा. हाँ, तूने बोला नहीं ना, हाँ हाँ. 0 भी आएगा, राइट गाइस? होल नंबर की बात कर रहे हैं. तो 10 आउटकम हो गए, प्रोबेबिलिटी हो गई 10/100 और 1/10. सिंपल क्वेश्चन है. अब इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड कर सकते हो कितना भी. A number is picked from first 100 whole numbers. What is probability that it would be? इसको नेचुरल करेंगे. It would be divisible by 7. ये सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. क्या करने वाले हैं इसमें हम लोग? एक काम करते हैं, थोड़ा और मुश्किल बनाते. चलो, हम पहले सॉल्व करेंगे फिर अगला करेंगे. टोटल आउटकम तो अभी 100 है, 1 से 100 होगा इस बार. फेवरेट आउटकम कौन कौन से होंगे? 7, 14, 21. जो 7 का मल्टीपल है, मतलब ये आपको करने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं, पर आपको पता है, राइट? I'm writing it for conclusion. ये होना है, राइट? कितने हो गए? 14. और वैसे भी करो, 14 7 98, तो 14 ही आने, राइट? Yes, sir. Probability is 14/100. Everybody is okay? Yes, sir. But if I say, see how the questions are formed, slowly इसको बढ़ाते आते. A number is picked from first 100 natural odd numbers. अब क्या होगा? 42 कैंसिल होगा, 84 कैंसिल होगा, 98 3 कैंसिल होगा, 11/100 होगा. 11 नहीं, 10. सर तो ये भी नंबर्स बढ़ेंगे ना, 100 के ऊपर जाएंगे. सोच लो. मतलब 7/100 होगा. लास्ट नंबर होगा 199. सोचो गाइस, आई डोंट नो. फर्स्ट बार टोटल आउटकम कितने होंगे, 100 या 50? 100, 50. फर्स्ट 100 नेचुरल ऑड नंबर्स. 1 से 100 लोगे या 1 से 50 आंसर लोगे? सेम आएगा सर, आंसर सेम आएगा. आंसर पे आता हूं मैं, महेश, यू आर राइट. पॉइंट ये है कि नंबर क्या लेंगे लोहित, 1 से 100 लेंगे. फर्स्ट 100 ऑड नंबर से, तो हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अप टू 100. सुनो, वेरी गुड महेश. द पॉइंट इज रोहित एंड एवरीबॉडी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1 से 100 तक ही है. फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स. हाँ, वो जाएंगे टोटल आउटकम तक, 199 तक. टोटल आउटकम फिर भी 100 ही होंगे, राइट? तो दोनों में फर्क है. If I say a number is picked from first 100, if number is picked from a number from 1 to 100, वो अलग बात है जी. For 100 natural odd number, so 1 3 5 7 ऐसे चलते चलते 199 तक आएंगे, राइट? टोटल आउटकम तो विल भी 100 ही है. फेवरेट आउटकम, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी इट विल बी डिविजिबल बाय 7. तो इवन नंबर तो वैसे भी नहीं है, तो चले जाएंगे. तो 7 21, लेकिन ये जाएंगे 199 तक, तो फिर भी 14 ही रह रहे हैं, क्योंकि उसके आगे बढ़ते हैं, पर सिर्फ थोड़ा न्यूमरेटर चेंज हुआ है, लेकिन इट रिमेंस सेम. तो आंसर स्टिल इज 14/100. करेक्ट? अब इस क्वेश्चन को यू कैन एक्सटेंड टू एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन. डिविजिबल बाय दिस, इस रेंज में, उस रेंज में. करना क्या है, उस रेंज के बीच में निकालना है टोटल आउटकम और निकालना है फेवरेट आउटकम. दैट्स इट. इजी है ना? यस सर. लेट्स ट्राई. विल टेक 5-10 मिनट्स मोर. ओके गाइस, हम लोगों ने कार्ड वाले क्वेश्चन किए थे. लेट्स ट्राई कि मैं तुम्हें एक और चीज बताना चाहता हूँ, सिनेरियो कैसे होता है, जो हम लोग कल कर रहे थे, उसको थोड़ा और डिटेल में. ए बैग कंटेंट्स, a bag contains 4 red, 3 green, 2 blue. Okay, 3 balls are picked.
simultaneously. What is the probability that number of red balls is more than number of green balls? मैं समझा देता हूं हिंदी में. A bag has this number of balls. I am picking 3 balls at random. What is probably that number of red balls would be more than number of green balls? कैसे करेंगे बताओ? It's all scenario based. That's it. I don't want answer in the numbers. I want concept only. So it can be either one from each color तो scenario or बताओ. two from Scenario? one and हाँ तो मुझे scenario बताओ. Scenario 1 क्या बोल रहा है? One from each color. yes. हो गया red, green, blue. और फिर दो सॉरी पर एक बात बताओ वासु, अगर एक हम्म। रेड एक ग्रीन एक ब्लू हुआ तो रेड ग्रीन से ज्यादा कहाँ हुआ? हाँ 2 रेड और एक ग्रीन या ब्लू लेना हाँ पड़ेगा. तो इसको बोलेंगे 2 रेड 1 ग्रीन ग्रीन और ब्लू. और 2 बोलो, रेड 1 ब्लू. तो हमको हमेशा जाना चाहिए हमेशा इन ऑर्डर वे. हम बोलेंगे या तो 3 रेड, सारा तीनों रेड आ जाए और 2 रेड एक ग्रीन आ जाए और हाँ. 2 रेड 1 एक ब्लू आ जाए. और कोई सीरियो है? इतना सब लोग करते हैं, बट एक मिस्टेक करो अभी. बताओ एक सीरियो और है जो सब लोग मिस करते हैं मोस्टली. या तो तीनों रेड आ जाए या 2 रेड हाँ. 1 ग्रीन या 2 रेड 1 ब्लू. ये क्यों नहीं हो सकता है? वन रेड 2 ब्लू नहीं हो सकता है? 2 रेड चाहिए ना. कहाँ बोला मैंने? ना ना ना, सिनेरियो क्वेश्चन एक्सपेक्टेशन क्या है? रेड ग्रीन से ज्यादा होना चाहिए, राइट? हाँ हाँ हाँ. तो ये हो सकता ही नहीं हो सकता है, हो सकता है. 1-0 से ज्यादा होगा. राइट? 1 रेड 0 ग्रीन. कई लोग बोलते हैं सर ग्रीन भी तो निकालना पड़ेगा. फिर तो ये भी गलत है. ये भी कैसे बोल सकते हो आप? मैंने कभी नहीं बोला कि ग्रीन इज मस्ट, राइट? मैंने विल आर्ग्यू दैट कि सर नंबर रेड शुड बी ग्रेटर ग्रीन, मतलब ग्रीन तो निकाल ही रहे. नहीं, ऐसा नहीं है. अगर ऐसा है तो फिर तो 3 रेड वाला भी ऑप्शन गलत है, राइट? सो नो, 3 बॉल्स आर पिक्ड. तीनों रेड भी आ सकती है. तो दिस इज. अब इसको सॉल्व करते हैं प्रोबेबिलिटी पे. हमने किया है. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी गेटिंग 3 रेड्स? 3C3 बाय 4/9. 4 3 7 दोनों 9C3. टोटल आउटकम्स आर 9 से 3, राइट? 9 बॉल में 3 पिक कर रहे हैं और फेवरेबल आउटकम्स आर तीनों रेड आए 3C3. एग्री एवरीबॉडी? प्लस 2 रेड 1 ग्रीन, 2 रेड आए 4 में से, 4C2 इंटू 1 ग्रीन आए 3 ग्रीन में से. ये तो वापस वही है 9C3. कॉम्बिनेशन किया था आपने, राइट? बेसिक जो कुछ क्वेश्चन किए थे इस पे हमने. फिर है 2 रेड 1 ब्लू, 2 रेड, 2 रेड चाहिए 4 रेड में से, 4C2 एंड 1 ब्लू 2C1. टोटल आउटकम्स आर 9C3. 9 बॉल में से 3 निकालना है, वो कभी चेंज नहीं होना यहाँ पे. एंड द लास्ट वन 1 रेड 2 ब्लू. 1 रेड मतलब 1 रेड आउट ऑफ 4, 2 ब्लू आउट ऑफ 2. नो आस्क मी, कोई कंफ्यूजन है तो. दैट इज द आंसर. सॉल्व करो, यू गेट इट. डिनोमिनेटर सेम है, एक ही बार करना है. दैट्स इट. See the main point, see ये combination तो I believe everybody knows. This everybody knows. Main point is this. ये जो मैं बता रहा हूँ, ये is the main point. आप सिनेरियो कितना क्लियरली लिखते हो, for you सिनेरियो गलत हुआ तो क्वेश्चन था, तो you have to write scenarios क्या होना है. मैंने क्लियरली बोला है रेड बॉल मस्ट बी मोर देन द ग्रीन बॉल. उसके लिए इतने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं.
सबने बनाया. This is what you need in any question. अब इस क्वेश्चन को चेंज भी कर सकते हैं. कमिटी बना रहे हैं, 2 girls, 3 boys, 2 boys, 3 girls. Every question will be exactly same way. You make the scenarios कि कौन-कौन से combination possible है. Clear everybody? So tomorrow we are going to do last session of probability जहाँ पे हम लोग बात करेंगे Bayes theorem and total probability. That's it. Okay? That's all for today. See you tomorrow, everybody. Thank you and bye bye. Yes, sir. कल बात. Come on exactly on 2 p.m. guys, so we can finish the probability. Bye bye. See you tomorrow. Thank you.